मेरे जवान जो ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे, तो ऐसे में उनको लगा कि शायद मुझे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है और वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, उससे मैं चीख रहा हूँ। किस्मत की बात है कि अगर मेरा हाथ कहीं दाएं बाएं और गिरता तो शायद मेरा हाथ उड़ जाता, अगर सर किसी और माइन पे पड़ता तो मेरा सर भी उड़ जाता। Which was to provide very useful inputs at this stage, was led by Captain Sangwan of the 16 Grenadiers. Sangwan's patrol was there in the area of Yaldor. Yaldor is a nala which is going up right up to the LC. He had gone in, and while returning, he had gone in onto area known as the Spring, and while returning from there, he was ambushed, and also of great presence of mind. He extricated most of his personnel from there, and we managed to establish contact with him about 3 to 4 hours after his ambush, and within the next 24 hours we did manage to recover most of his casualties. Sangwan was to remain there for 3 weeks. From there he would be sent to occupy the ridgeline of the Three Pimple area, where he was to witness one of the fiercest battles of the 50-day war. It was here, when Sangwan was moving with his men to occupy a post vacated by the enemy, that he had his leg blown up in a mine blast. I was told by my senior officers that you may find some resistance also there, though we have already cleared that area, and further operations are to be launched from my position the next day. Pakistani, before retrieving, they had thrown these plastic minefields, and I stepped onto the mine, and with a big explosion I lost my leg. Regrets. In fact, the day when we are putting on a uniform, that day we already promised our complete body, everything to the nation, for the nation. In fact, I am not happy because only a small part of my body has gone, but still my complete body is left. So those idiot Pakistanis, they just taken a small part. So now coming to एक section में last में touch करूँगा before we. So as all of you know, many of जिसको नहीं पता है आप Google कीजिए कि 1999 में we had Kargil war. You know why Kargil war? The premises was that घुसपैठ हुई थी काफी सारा that time because you know like हम लोग जो है एक शांतिपूर्ण देश है, हम लोग भावनाओं को रेस्पेक्ट करते हैं, हम मित्रता की ओर बढ़ते हैं, but Pakistan ditched us. I'm giving you the background of Kargil war, and Atal Bihari Vajpayee ji went to Lahore. There was this Lahore buzz thing, everything was going on, and then unfortunately पीछे there was a built up of the Pakistani army. वो साइड से जनरल then that time Pervez Musharraf जो थे, he was the main characters in all that. ऐसे कहा भी जाता है कि बहुत सारे जो जनरल्स थे उनको पता भी नहीं था कि there was a built up happening, and then fortunately we couldn't detect the infiltration at the right time, and when it came to us, जब पता चला कि कुछ चरवाहों ने हमें बताया कि shepherds कि there are some unlike people, you know, ये normal यहाँ के नहीं लगते हैं करके, and that is the time, first time जब major that time Saurav Kalia, I'm sure all of you know Saurav is my batchmate. So Saurav was sent along with 4 others to check infiltration. Unfortunately, Saurav and other 4 brave warriors, they never came back. And you know, आप सब जानते कि कैसे brutal था, how Saurav was you know kept in captive, and it was really painful. As a postmate, it is much more painful for all of us. Then हमने वो कसम खाई थी कि ना शुरुआत आपने की है पहले गोली से, खत्म कब होगा हम डिसाइड करेंगे करके. So that was the premises of the Kargil war, and sir was you know leading from the front. हम पानी में थे तभी पीछे as Operation Vijay, you know, as Operation Talwar for us from the Navy, and this is the premises. So अब मैं sir से you know like sir has been there in that premises and everything. Sir was from the 18 Grenadiers, no sir, if I'm not wrong. 16 Grenadiers. So 15 Grenadiers once upon was known as the Bombay Army earlier, all those things.
So, sir, how was your induction into the war, sir, war region? The Kargil war का जो setup था, and how a young captain was told कि okay, you have to, check out the infiltration. So, आपसे सुनेंगे, sir. I will not take much time here. So, all yours, sir. All right, thank you, Vijay. And जब मैं अपने साथियों से जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि विजय, जिस प्रकार हमें मौका मिला था, our counterparts, Vijay was also there part of the Operation Talwar. और मैं कहूँगा कि जो हमें जो अवसर मिला था, we were there physically on ground, लेकिन जो कार्रवाई और जो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने किया है, उसका जिक्र कम होता है, मगर उसका महत्व बहुत ज्यादा है. So you people, I would say salute to the Indian Navy and the Indian Air Force, which gave us the strength, and I never hesitate in openly accepting that कि जब मुझे पता लगता है कि मेरा बैक और जब मेरा राइट लेफ्ट स्ट्रांग है, तब जाके मैं आगे जिससे भिड़ना चाहो भिड़ सकता हूँ. तो यू वर द एक्चुअल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशनल स्ट्रेंथ कि भाई मेरे समंदर भी सेफ है, मेरा आसमान भी सेफ है, धरती को हम संभाल लेंगे. So this is hats off to you and to all the brave soldiers of the sailors of the Indian Navy and air warriors of the Indian Air Force. So this is, I would say, the great strength of the defense forces कि हम एक दूसरे को compliment, जिस भी condition में पहुंचते हैं हम एक दूसरे को compliment करते हैं. Now coming to the operation, I was not knowing विजय कि आप सौरभ के बैचमेट हैं, तो hats off and salute to the great soldier. जब आप बता रहे थे तो I could actually feel कि this could have been my situation, my जवान situation जो सौरभ के साथ हुआ. But how I got inducted into the Op Vijay Kargil war जब शुरू हुआ था, तो it was in May 9, first week of May, कि जब I was sitting on the post in Dras, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कंडीशंस इतनी टफ होती हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस है, -50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप कैसे सर्वाइव करते हो. तो जब हमें ऊपर पोस्ट पे भेजा गया था, तो आई वाज कॉल्ड बैक फ्रॉम द पोस्ट, 20 किलोमीटर वापस नीचे आना पड़ा. एंड सिंस बटालिक सेक्टर में जहाँ कि सबसे पहले कुछ हरकत देखी गई थी, कुछ बकर वालों ने, कुछ जो गडरिये थे शेफर्ड्स, उन लोगों ने कुछ हरकत देखी थी पहाड़ों में. तो दे आर ईयर्स एंड आईज इन द माउंटेन्स. तो वो उन्होंने रिपोर्ट किया. और 1998 में लड़ाई से एक साल पहले, तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी द कंपनी कमांडर इन द बटालिक सेक्टर. तो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन के कुछ चांसेस होते थे. तो वहाँ के जितने भी नाले के ऊपर रास्ते हैं और वहाँ जो छोटे छोटे हमने पुल बना रखे थे, वो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं. तो उस एरिया का मैं चप्पा चप्पा जानता था. तो सिंस द ब्रिगेड कमांडर न्यू दैट ही हैड ऑलरेडी वर्कड देयर, तो वी वर टास्क्ड टू गो टू बटालिक एंड फाइंड आउट कि जो खबर आई है कि कुछ ऐसा बिल्डअप हो रहा है, सच्ची है कि नहीं है. बिकॉज 3 पंजाब रेजिमेंट ने बताया था. तो हम द्रास में थे. द्रास से हम काकसर, जहाँ फोरजाट, जहाँ सौरभ वाज पोस्टेड, उसके बाद आया कारगिल में 10 गढ़वाल राइफल्स थी. देन बटालिक सेक्टर, वहाँ पर 3 पंजाब रेजिमेंट थी. और सबसे इधर जोजिला के पास में 16 गनीडेयर, जहाँ का मैं था. तो व्हेन वी वेंट देयर, उस समय ये अंदाजा नहीं था कि कितने पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं नहीं, कौन है. तो इट वाज 6th of May, 7th of May कि जब हमारी पेट्रोल पार्टी ऊपर गई, तो वी वर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर द वॉर, या वॉर क्या हमें पता ही नहीं था. हम जब ये देखने गए थे कि कुछ ऊपर है कि नहीं है. जब वहां गए तो मेरा यंगस्टर वाज जस्ट गॉट कमीशन्ड, उस समय 2nd लेफ्टिनेंट सुरवे. तो जब ये और साथ में पीछे मैं चल रहा था, तो आगे जब एक बक्कर हट, जो जहाँ बकरवाल रुकते हैं, उस जगह जब पहुंचे, तो उनके ऊपर बहुत बहुत तेज फायर हुआ. तो 2 मुझसे लगभग 100 मीटर आगे थे, और 3 जगह से इतना बुरी तरह से फायर हुआ कि पूरा जो वादियां हैं पूरे एकदम से दहल गई.
that was a time when we understood that there is actually something very great, something very difficult and something very I would say obnoxious is happening. कुछ खतरा है. और जब हम उस जगह ऊपर अपने आप को डिप्लॉय कर लिया, और वो जब मेरे कुछ जवान थे, दे वर ऑल फायरिंग टीम मेंबर्स, जब नीचे से एकदम नाले के साथ भागने लगे. एक्चुअली पहाड़ों में आप देखते हो तो इस तरह से नीचे नाला बना होता है और ऊपर पहाड़ है, दाहिने बाएं पूरे पहाड़ है. तो ये जो रास्ता है सब नाले के साथ साथ नीचे नीचे बना होता है. तो नाले के साथ भी वो जब भाग के आ रहे थे, उन्हें रोका. शाम हो चुकी थी, पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है. तो उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ से कमांडोज आ गए हैं और हम सबको घेर के मार रहे हैं. जब उन्होंने हमको एम्बुश किया तो उसमें वी लॉस्ट 3 बॉयज ऑफ 16 ग्रेनेडियर्स. तो दोज वर द फर्स्ट 3 कैजुअलिटीज ऑफ द ऑपरेशन विजय कारगिल ऑन 6-7 May नाइट. और हमने अपनी मशीन गन्स लगाई. उस समय सिचुएशन को असेस किया. हम सड़क से 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में थे, यालदोर से आगे. तो जब वहां पहुंचे और हमने मशीन गन्स अपनी फिट कर दी, रात को क्रॉल करते हुए, एक्चुअली वही एक पार्ट का ट्रेनिंग है, क्योंकि विजय भी ही इज अ ट्रेन्ड मरीन कमांडो, आई एम आल्सो मरीन कमांडो, आर्मी कमांडो. तो क्रॉल करते हुए रात को 2 बजे 100 मीटर नाले के साथ साथ करके क्रॉल करके गए, क्योंकि हमारे साथियों ने बताया कुछ लोग घायल पड़े हैं और वहां झाड़ी में या पत्थरों के बीच बोल्डर्स में शायद घायल हैं या जिंदा हैं या नहीं है, पता नहीं. जब क्रॉल करके पहुंचे रात के लगभग 2 बजे थे. मेरे एक साथ में ऑपरेटर और एक और बडी, और हमने मशीन गन्स ऊपर लगा रखी थी. यदि कोई भी हरकत होती है, अगर कुछ भी नजर आता है, मूवमेंट दिखती है, तो सीधा आपको फायर खोलना है, एंड यू हैव टू किल एनीवन. दैट वाज अ टाइम जब हम पहुंचे तो कुछ हरकत मुझे झाड़ियों में नजर आई. हाथ लगा के देखा तो वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था. मेरा हवलदार पदम सिंह, ही वाज नेशनल लेवल पिस्टल फायरर, और it was very difficult to actually take out the body at that point of time. सबसे कठिन जो परिस्थिति आपके साथ होती है कि वो अपने साथी की बॉडी को कैरी करना. और वहां एक ऐसी सिचुएशन जहां मुझे पता है कि 3 तरफ से लगभग 100-200 मीटर ऊपर पे 3 तरफ से पाकिस्तानी कमांडो हमको घेर के बैठे हैं, और कोई भी हरकत होते ही दे आर गोइंग टू किल ऑल ऑफ अस. ऐसे में वो अपने साथी को खींच के लाना, भगवान करे आप सब लोग आर्मी ज्वाइन करें, एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करें, मगर ऐसी सिचुएशन किसी को ना आए कि आपको अपने साथी की बॉडी उठानी पड़े या खींचना. अब परिस्थिति ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं सकता, घुटनों के बल बैठ नहीं सकता, और मुझे वो मेरे साथी की जवान, कारगिल लड़ाई का पहला जो कैजुअलिटी, पहली जिसने गोली खाई थी, वो हवलदार पदम सिंह, उसको मुझे मेरे साथ वापस भी लाना है. दुख बहुत हुआ, तकलीफ बहुत हुई, लेकिन मैं उसका हाथ और पैर खींच के, जो पहली बॉडी थी, आंखों में पानी लेते हुए, मन में गुस्सा लेते हुए, घसीट के 50 मीटर उसकी बॉडी, मेरे जवान की बॉडी को साथ में मैं खुद क्रॉल कर रहा हूं, और उसको हाथ और पैर पकड़ के नाले के साथ घसीट के 50 मीटर थोड़ी सी जो आड़ है वहां पर लेकर आया हूं. उसकी छाती में 8 गोलियां लगी हुई थी. He died on the spot there. जब वो लेकर आया और तब पीछे मुड़ के आए, मेरे 2-3 जवान की बॉडीज और भी वहां छूट गई थी उस समय. तो ये उनको लेकर आके तब हमें नीचे रेडियो से मैसेज पास किया कि we have 3 casualties and I have brought 1 body back. और पाकिस्तान के कमांडोज 3 तरफ से हमको घेर रहे हैं. 120 पाकिस्तानियों ने, मेरे पास सिर्फ हम 15 कमांडोज हम साथ में थे, हम 15 कमांडो और 120 पाकिस्तानी कमांडो ने 3 जगह से हमें घेर रखा था. द क्लियर कट ऑर्डर्स फ्रॉम द आर्मी कमांड वर, एक भी इंच पीछे नहीं आना है. वी आर नॉट गोइंग टू गिव इवन अ सिंगल इंच ऑफ अ लैंड. स्टे वेरेवर यू आर, होल्ड ऑन द पोजीशन टिल यू आर गेटिंग reinforcements. Since I knew the place, I knew the area, उस एक जगह चप्पा मुझे पता था.
हवलदार पदम की बॉडी को हमने नीचे भेजा, केप्ट ऑन ऑक्यूपाइंग द प्लेस, और हाइट पे हम चले गए। हम इस सिचुएशन के लिए दोस्तों तैयार नहीं थे। एज ए यंग कैप्टन, 3 साल की नौकरी मेरी थी। आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, नीदर माई कमांडो फोर्स वर रेडी फॉर कि दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन गोइंग टू हैपन। हम अपने सिर्फ जो सेफ्टी के लिए कुछ एक मैगजीन्स और एक दो रॉकेट लॉन्चर और एक मशीन गन लेके गए थे। We kept on holding that fort for 7 days and 7 nights. और हमारे पास, since we are trained commandos, we know how to survive. 7 दिन तक हमने कुछ भी खाने को हमारे पास नहीं था। बर्फ गिर रही थी, -25, -30 डिग्री टेम्परेचर, पत्थरों के बीच, बर्फ के बीच और गोला बारूद की तरफ हर तरह से फायरिंग हो रही थी। वी केप्ट ऑन फाइटिंग, वी केप्ट ऑन सर्वाइविंग। एक दो 4 गोलियां मारते, हम अपनी पोजीशन चेंज करते, रात भर न रात को नींद न कुछ और। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। जब प्यास लगती थी तो बर्फ का गोला बनाया और मुंह में डाल लिया। नाला नीचे से बह रहा है, पानी हमारे नीचे है, दिख रहा है, मगर हम नीचे नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते। आखिरी 3 दिन वी कुड नॉट हैव इन ड्रिंक सिंगल वाटर, पानी नहीं मिला हमको। और ऐसे में चौथे दिन जब मैं बाइनोकुलर से क्रॉल करते हुए रात को आगे पीछे जाके देखा तो मेरे जवानों की 2 बॉडीज नाले के अंदर बोल्डर्स के पीछे मिली थी। मैंने मेरे जेसीओ से कहा कि साहब, मोहन कटाथ और उदयवीर जयदीप सिंह, इनकी बॉडीज मुझे दिख गई हैं और ये बॉडीज हमको लेने जाना है। जेसीओ ने कहा साहब, थोड़ी भी हरकत करेंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हम सितारे पहनते हैं, जिस दिन हम कमीशन होते हैं, उस दिन ये हम कसम खाते हैं, उस दिन ये शपथ उठाते हैं कि द ऑनर, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ माई नेशन विल कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। The welfare, safety of the men I command will come next, always and every time. And my own welfare, my own safety will come last, always and every time. This is the shapath what we take when we wear the stars on our shoulders. और यही है वो शपथ, इसके लिए भारत का राष्ट्रपति आपको ऐसे कमीशन्ड ऑफिसर बनाता है ताकि आपको ऐसी कंडीशन में जिंदगी और मौत के फैसले लेने के लिए आपको तैयार करता है। मैं जेसीओ से कहा साहब, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे साथियों की वो इज्जत मिले, मेरे साथियों जो आज जिंदा नहीं है उनको वापस उनके घर पहुंचाए। आप मशीन गन तैयार रखिए, अगर मेरे पे फायर हुआ तो आप बेधड़क फायर खोल सकते हैं। कीप गिव मी कवरिंग फायर। अब मैं अपनी बॉडीज को निकालूंगा। मैं 3 वॉलंटियर्स कमांडो को साथ में लेके रात को नाले में उतरे और वो 2 बॉडीज निकाल के वहां से नीचे लेकर आगे थोड़ा सेफ जगह पहुंचा के वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। हमारी अच्छी किस्मत थी कि हमारे पे फायर नहीं हुआ। जब फायर किया, रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी सब मारा उन्होंने, लेकिन वो नाले में आसपास सब गिर गए थे। हम सेफ थे, बॉडीज पहुंचा दी। एंड दोस्तों, दैट इज द टाइम एक और परमवीर, एक और ऐसा बंदा सामने आया। उसका नाम था मनोज पांडे, परमवीर चक्र, गोरखा रेजिमेंट had come to rescue and come to reinforce us. हमें बदली करने के लिए 7 दिनों में सारा मैसेज पहुंच गया था कि कैप्टन सांगवान अपने कमांडोज के साथ में इज होल्डिंग ऑन द फोर्ट देयर और इसको रिइंफोर्स करना है, आगे बढ़ना है। तब तक मेरे साथी जब आगे काकसर, द्रास और कारगिल एरिया में जब मूवमेंट पता चली, तब जाके सौरभ और उसका ट्रूप, उसके जो साथी थे, दे ऑल्सो वेंट अप कि अपनी पोस्ट्स जो थी, जो विंटर्स में हम नॉर्मली विकेट रखते थे, उस जगह जाके चेक करें कि कहीं कोई इस तरफ भी कोई एनिमी बिल्डअप है कि नहीं। क्योंकि यदि आप लाइन ऑफ कंट्रोल देखेंगे तो ऊपर से आप
सियाचिन ग्लेशियर, फिर हनीफुदिन सेक्टर, फिर हमारा बटालिक सेक्टर, बटालिक के बाद कारगिल, इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल आगे जाता है। तब 4th जाट रेजिमेंट ने सौरभ कालिया, जो कि वो उस पोस्ट पे थे पहले से, अपने एक छोटी टुकड़ी के साथ काक्सर सेक्टर में उस पोस्ट पे देखने के लिए भेजा कि यहाँ कहीं कोई दुश्मन की पोजीशन है तो नहीं है। और इसमें जब वो ऊपर जा रहे थे तो पाकिस्तानी सोल्जर्स पूरे रिज लाइन पे दोनों तरफ से बैठे हुए थे। दे वर वॉचिंग सौरभ एंड हिज टीम थ्रू आउट। दे वर वॉचिंग देम वॉकिंग अप, क्लाइंबिंग अप इनटू द ट्रैप। क्योंकि मैं द्रास सेक्टर पे काम किया था, उसके साथ वाली पहाड़ियों पे मैं था, तो वो पाकिस्तानी सोल्जर्स आगे तक, नीचे फिंगर्स तक, अगर ये पहाड़ की अगर ऐसी है तो यहाँ इस फिंगर में आगे तक, इस फिंगर में आगे तक, नीचे तक पहुंचे हुए थे। और अगर ये पोस्ट है ऊपर तक, तो जब तक कि हमारे साथी यहाँ तक चढ़ के ऊपर तक आएंगे, दे केप्ट ऑन से कीपिंग देयर फायर साइलेंस, fire control. They did not fire from here. They did not fire from here. They allowed Saurav's team to keep on climbing up to the bunker. वहां तक आने दिया, और वो बाइनोकुलर से और चारों तरफ से वो देख रहे थे। Why I am saying all these things with so much of authority? Because जब मुझे द्रास से बटालिक सेक्टर में कि ये मूवमेंट कुछ बकर वालों ने बताई है, कुछ इस तरह से आगे जाना है, तो जिस दिन मैं बिम्बट एलसी पोस्ट द्रास से उतर के नीचे आ रहा था, वो लड़ाई के बाद मुझे ध्यान आया कि जब मैं ऐसे नीचे उतर के आ रहा था बिम्बट से, जहां द्रास का एक फेमस वॉर मेमोरियल बना हुआ है, तो यहाँ भी पाकिस्तानी बैठे थे, इस तरह भी पाकिस्तानी बैठे थे, और उनकी आंखों के सामने, नजरों के सामने मैं मेरे एक रेडियो ऑपरेटर के साथ में चल के गया था। एनी टाइम, किसी भी समय वो नीचे उतर के दे कुड हैव कैप्चर्ड मी अलाइव along with my operator and my buddy। और जो हाल सौरभ का हुआ, उसके साथियों का, वो हाल 6 दिन पहले मेरे साथ होना था। I consider myself very fortunate कि अनजाने में, एक्चुअली अनजाने में, सौरभ भी अनजाने में, कि पता नहीं था कि वो दोनों तरफ से यहाँ भी बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, और यहाँ भी बैठे हुए हैं, और ये अपने टट्टों के साथ ऊपर चढ़ रहा था। सौरभ 5 दिन के बाद ऊपर चढ़ रहा था, और 5 दिन पहले मैं इसी रास्ते, साथ वाली पहाड़ी से, सेम सिचुएशन में, मैं उनके नजरों के सामने से उतर के गया हूं। नसीब, किस्मत की बात। जब ये पता चला उनके पेट्रोल ने, जब सौरभ और उनके पेट्रोल वापस नहीं आई, तब ये खबर लगी कि उस जगह भी इतना वो पाकिस्तानी बिल्डअप है। और देन एवरीवेयर व्हेन इट वाज सर्च्ड, तो मालूम चला 140 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह पे पाकिस्तानी ने हमारी पोस्ट पे कब्जा कर रखा था, अलग अलग गैप्स में। सो दैट्स हाउ, जब 7 दिन बाद जब मैं नीचे उतर रहा था, तो मनोज पांडे परमवीर चक्र जिन्हें बंद मिला, वो शेर बच्चा मुझे मिला, बोला सर चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, आप अपने कमांडोज को लेके आप मूव कीजिए। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात कही उससे कि मनोज, मैं चाहता हूं कि ये जो जवान हैं, इस लड़ाई, कारगिल लड़ाई की सबसे पहली कैजुअलिटी, जिन्होंने पहली छाती पे गोली खाई है, मेक श्योर दैट इनकी बॉडीज इनके परिवार तक पहुंचे। मैं तुमसे यही मांगता हूं। एंड दैट ब्रेव बॉय, दैट ब्रेव ऑफिसर, he said कि सर ये आपके नहीं, ये मेरे अपने भाई हैं, एंड आप चिंता मत करो, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट, पिछले 6-7 दिन से हम बहुत सुना है आपके पोस्ट के बारे में, द वे यू आर होल्डिंग ऑन दिस पाकिस्तानी हियर, डोंट वरी, वी हैव कम हियर। एंड हिज कमांडिंग ऑफिसर वाज कर्नल ललित राय। आप कभी पढ़ेंगे तो कर्नल ललित राय, once again गुरखा ऑफिसर, and he was the adjutant, Vijay, he was the adjutant of officers training academy when we were going under training। तो ऐसे elite officers जिन्होंने हमको ट्रेन किया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वॉर सिचुएशन में हैं, and that is the officer, he is coming as a commanding officer under brave officers like मनोज पांडे। तो ऐसे लोग जब साथ में आते हैं, तो
सारा डर सब खत्म हो जाता है। एंड जो साथी एस्पिरेंट्स आप सुन रहे हो, मनोज पांडे केप्ट हिज वर्ड। मेरे सारे बंदे, सबकी बॉडीज उनके घरों में सेफली और इज्जत के साथ उसने इंश्योर किया कि पहुंचे हो। So that's how actually we got inducted into the war. When initially it was told कुछ मुट्ठी भर पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, इनको मार के भगा देंगे, हो जाएगा, हटा देंगे इनको। और उस समय we were fighting that 120 या 120 से भी ज्यादा उस कंपनी में 15 कमांडोज against 120 men fighting for 7 days without food, without water. That's how like we get trained. ये एक कठिन समय होता है, और ऐसी घड़ी में आप कठिन फैसले ले सको, सही फैसले ले सको, इसलिए आपको एसएसबी में इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह से आपको सिलेक्शन किया जाता है, राइट। और ये जो बातें मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, गहराई में, डिटेल्स में कभी मैं शायद इस बारे में कभी बात नहीं की, मगर मैं समझता हूँ कि यदि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं या इसको अपना पैशनेटली करियर बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब सिचुएशंस के बारे में सोचते समझते हुए अपने आप को इस देश के प्रति समर्पित करें। कैजुअली, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन टू बी टेकन एज कैजुअली। एक्सपेरिमेंट करने के लिए फौज नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाकी सब चीजें हैं, लेकिन आपके जवानों की जिंदगी मौत का सवाल जहां पर आता है, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड फर्म ऑन दिस। और यही एक चीज है कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, मरीन कमांडोज हैं, they all are trained in this manner to take the appropriate decision at the right time for the best interest of the nation and best interest of the jawans and the soldiers they command. I mean, like I'm sure all of you would have been glued to your seat, because I have heard, I know this in and out, and we used to hear Captain Sangwan का नाम तभी सुनते थे when we were a young officer, and today like as I said sir, पहले जैसे मैंने बोला कि it's a privilege, it's a real privilege, even talking to you is a privilege. So 7 दिन वो क्लाइमेट में इमेजिन, यहाँ तो कॉर्पोरेट में ऑफिस में एसी में बैठो, 1 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता तो आपको ठंड लगता है, कोट वेट पहनने लग जाता है। Imagine the situation, you don't have food, and then your men are looking at you, as an officer, जैसे सर ने बताया, it is, अगर आप टूट जाओगे तो सभी टूट जाते हैं वहां पर, and they look up to you. अगर आपने एक बार स्टार पहन लिया या फीती पहन ली, irrespective of your age, whether you are 21 or whether you are 45, you are an officer and everyone look up to you, and that is what is the bravery. जैसे सर ने कहा, and जैसे वो जो मोटो है, your country comes first, then the people who you command, and that was the true ethos to which sir stood. अपने जवानों का जो हम ये नहीं बोलेंगे कि बॉडी है, but they are our compatriot some point of time, and देश के लिए all of them laid down their lives, and the way sir described Captain Manoj Pandey, I'm sure हर एक सोल्जर जो था वो उतना ही ब्रेव था जितना मनोज सर था, या anybody who would, each soldier was equally brave, and some कुछ चीजें हैं ऐसे इसमें, some courage और bravery gets noticed, some go unnoticed. बोलते हैं ना कि एक परमवीर चक्र के पीछे there are hundreds and thousands of unknown, hundreds and thousands of unknown, but all those chakras are all those who are well deserved, and many more. So Captain Manoj Pandey ka to all of us know now, all of us know this story. So sir, how did that incident happened where you have to lose that part of, and the very famous आपका जो वीडियो था सर, वो आज भी goosebumps देता है all of us, Pranay, before I finally that mine blast happened there, that plastic mine उन्होंने जो बिछाई थी, ये this was on 29th of June
तो इस समय आज हम 19 जून को बात कर रहे हैं, आज से 10 दिन बाद, तो लगभग 22 साल पहले जब लड़ाई काफी एडवांस दौर में पहुंच गई थी इन द्रास सेक्टर, तो जैक राइफल्स के जो 4850 इन्होंने विक्रम बत्रा की बटालियन उन्होंने कैप्चर कर लिया। आगे टोलोलिंग कैप्चर करने के बाद अगली पहाड़ी थी बंकर, बर्बाद बंकर, और फिर राजपूतान राइफल्स को उसमें इन्वॉल्व किया गया। तो जब राजपूतान राइफल्स अटैक करने के लिए थ्री पिंपल्स और काली पहाड़ी जिसको हम कहते हैं, जब वहां अटैक करने जा रहे थे तो एक तरफ से अटैक करना संभव नहीं था। तो प्लान ये बना कि जैसे फिर से उदाहरण दूंगा कि अगर यहाँ इस जगह पे पाकिस्तानी हैं तो लेफ्ट साइड से राजपूतान राइफल्स का अटैक होना था और राइट साइड से मैं अपने कमांडोज के साथ में। तो आई वॉज टास्क्ड टू क्लाइंब फ्रॉम दिस साइड और राजपूतान राइफल्स वॉज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। तो रात को जब अटैक की बात आई तो उस दिन रात को पाकिस्तानी दे केम टू नो कि आज हम खत्म हो जाएंगे, बिकॉज जब लड़ाई होती है लगभग अधिकतर लड़ाई रात को ही चली है, क्योंकि दिन में मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है और हम दुश्मन के सामने आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो जब डिसाइड हुआ कि आज रात को हमला होना है तो हमारी बोफोर्स गन्स ने पहले ही इस एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉप पे गोला मारना और लगभग 15-20 किलोमीटर दूर से फायर कर सकते हैं। बोफोर्स ने इस लड़ाई में बहुत अच्छा बढ़िया काम किया कि वो डायरेक्ट रोल में रोड के ऊपर आके और दे वर फायरिंग इन डायरेक्टली टू द ऑल दीज पॉइंट्स। फिर हमारे जो मोर्टार है वो हाइट से आके गोले मारे उनके ऊपर, एंड देन वी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग अप। तो इस तरह से जब हमला होता है तो हम नीचे से क्रॉल करते हैं और ऊपर से हमारे सपोर्ट फॉर आर्टिलरी गन्स और हमारे जो बोफोर्स हो गए या बाकी और ऊपर से फायर मोटर फायर करते हैं और नीचे नीचे हम क्रॉल करते हैं ताकि दुश्मन का सर नीचे रहे, तो हमको कवर फायर मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फ्लैंक से मैं आगे बढ़ रहा था। हमारा टारगेट ये था कि आई विल बी गोइंग फ्रॉम दिस साइड and reaching as close as possible to the Pakistani posts. राजपूतान राइफल्स बिल्कुल वहां से कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो बिना फायर किए चुपचाप आगे बढ़ेंगे अंडर कवर क्रॉलिंग करते हुए। हम यहां से फायर करते हुए सब तरह से फायर करेंगे ताकि पाकिस्तानी हमारे ऊपर हमला करें। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द डमी अटैक और पीक से लगभग 100 मीटर पहले एक क्लिफ आती है। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द डमी अटैक इनिशियली कि हमें अपने आप को शो करना है कि तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला मेरी डायरेक्शन से हो रहा है, सो दैट उनके पाकिस्तान के हर तरह के हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, बॉम्ब्स और हर तरह से फायर उन्होंने हमारे पे खोल दिया। उनके सारे जो वेपन्स थे उनकी डायरेक्शन उन्होंने रीपोजिशन करके दे स्टार्टेड firing towards us, and we kept on crawling and kept on reaching closer to them. उन्हें पता था कि आज उनकी आखिरी रात है। तो जब हम लगभग 100 मीटर नजदीक यहाँ पहुंचे इनके पास, तब तक राजपूतान राइफल्स they kept on moving slowly up on the top. हम सब रेडियो पे कांटेक्ट में, सिग्नल में एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पे सबसे बात कर रहे थे, एंड एज पर आवर टाइमिंग, जो हम जब कभी ऑपरेशंस होते हैं तो साथियों वी गो बाय द क्लॉक टाइमिंग। तो जब क्लॉक टाइम शुरू हुआ उस समय हमारा अटैक स्टार्ट हुआ और जिस पोजीशन में मुझे पहुंचना था उस समय क्लॉक टाइम होते ही मेरी टीम वी केप्ट लो, एकदम से हमने फायर करना बंद कर दिया और फिर लेफ्ट साइड से राजपूतान राइफल्स दे ओपनड अप देयर फायर। पाकिस्तानी वर ऑल अलाइन टुवर्ड दिस साइड, मेन अटैक आया उस तरफ से, एंड दैट वाज द टाइम जब बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर वी हैड हेवी कैजुअलिटीज, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था पाकिस्तानी का। तो उसमें वी लॉस्ट मेजर आचार्य, लेफ्टिनेंट विजन थापड़, लेफ्टिनेंट कैंगरूजे,
and 12 jawans, 10 or 12 jawans of Rajputan Rifles were climbing up and fighting with Pakistanis because total chaos मचा हुआ था वहां पर. पता नहीं चल रहा था कि कौन फायर कर रहा है. पाकिस्तान का फायर आ रहा है कि हमारा फायर आ रहा है, तो हमारा सपोर्ट फायर गिर रहा है, हमारा एडम बेस वहां से फायर कर रहा है. जो हम कभी देखते हैं दिवाली पे एक फायर क्रैकर शो होता है, फायर शो होता है, इट वाज जस्ट लाइक दैट कि हर जगह पूरी आग लगी हुई थी, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, आर्टिलरी बम फूट रहे हैं, और सच में नहीं पता कि किसकी गोली कहाँ चल रही है. हमारी मशीन गन्स फायर कर रही हैं, हमारे रॉकेट लॉन्चर्स फायर कर रहे हैं. दैट्स द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड कैप्चरिंग वन बंकर बाय वन बंकर. जब राजपूतन राइफल्स ने इमीडिएटली वहां कैप्चर किया एंड वी वर गेटिंग रिपोर्ट्स कि यहाँ इतनी कैजुअलिटीज हो गई. पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़ के भागने लगे, अपने बंकर छोड़ के भागने लगे, और उन्होंने सब जगह माइन फील्ड बिछा दी. माइन फील्ड बिछा के माइन फील्ड फेंक दी उन्होंने ऐसी, और कुछ एक कैजुअलिटीज उनकी भी हुई, हमारी कैजुअलिटीज भी हुई. तो बट व्हेन वी लॉस्ट 3 ऑफिसर्स एंड दिस मैन, आई गॉट ऑर्डर्स दैट पाकिस्तानीज दे आर वेरी वेरी क्विक इन काउंटर अटैक. वो पीछे जाते हैं और उनके दोबारा से रीइंफोर्स करके वापस से आके अटैक करते हैं. I was tasked to immediately come and occupy these places. अपने बंकर को physically immediately occupy करो, अपनी positions बनाओ, guns वगैरह अपने ready करो, so that immediate पाकिस्तान जो अभी attack आएगा, so you are the first man to hold on them. तब तक Indian forces और reinforcement के लिए आएंगी, क्योंकि हमारी 2 कंपनी ऑलरेडी काफी इसमें नुकसान हो चुका था, और reinforcements नीचे से आने में टाइम लगना था, और रात की लड़ाई चल रही थी, वो आने में सुबह हो जाती. एंड टाइम वाज वेरी वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि पाकिस्तानी भी उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ना नहीं चाहते थे. तो आई गॉट दिस टास्क. तो लेकिन उस समय हमारी मूवमेंट की स्पीड बहुत कम हो गई थी, बहुत धीरे धीरे मूव करके देन हम नीचे उतरना था, नीचे उतर के पहाड़ चढ़ के. तो बाय द टाइम वी रीच देयर इट वाज ऑलरेडी लेट नाइट. मेजर Colonel Ravindranath, commanding officer of 2 Rajputan Rifles, वो कुछ बोल्डर्स के पास वहां खड़े. तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, 2 रस्सी से क्लाइम करके, तो I met him. I said, Jain sir, we were all on touch, all on same network. तो सांगवान, उससे पहले रविंद्र सर से कभी मिला नहीं था, मगर हम इतनी बातचीत हमारी होती थी रेडियो सेट के ऊपर, तो इट वाज जस्ट ओके, वी नो ईच अदर वेरी वेल. तो सांगवान, यस सर, बेटा टेक केयर, दीज वर द वर्ड्स, बेटा टेक केयर. तभी एक स्लीपिंग बैग, बॉडी बैग वाज केप्ट देयर. तो मेरी नजर उस पर पड़ी. ही जस्ट सेड, Major Acharya. So Major Acharya his body was there in the bag. I just saluted and told Ravindra sir, don't worry, I am here. He said, beta take care. And I moved up along with my commandos. लेकिन एकदम स्टीप चढ़ाई थी, 70-80 डिग्री ऐसे चढ़ाई ऊपर चढ़नी थी. वहां पहुंचे तो पाकिस्तानी बंकर्स में सब जगह उन्होंने खाना फैला हुआ था, उनका स्लीपिंग बैग, उनका राशन, और सब जगह ऐसे चीथड़े पड़े हुए थे, बॉडीज पड़ी हुई थी उनकी. लेकिन जब इतना स्टीप क्लाइंब थे तो मेरे जवान बाकी वो भी थोड़े धीरे धीरे हो गए. एक लंबी कतार बन गई थी, डिस्टेंस काफी हो गया था, रात का टाइम था, कोई रास्ता था नहीं. जिस जगह जो पत्थर पकड़ के हम क्रॉस कर सकते थे वो क्रॉस करते ऐसे पहुंचे. सिंस टाइम वॉज ऑफ मोर एसेंस, वक्त की सारी कीमत थी, क्योंकि पाकिस्तानी काउंटर अटैक आ सकता था. तो आई क्लाइम्ड अप. मैंने अपने जो एक्स्ट्रा बैग्स थे वो लगभग 100 मीटर नीचे छोड़े, एंड आई टुक माय गन एंड वेंट अप अलोंग विद द रेडियो सेट. आई टोल्ड माय बॉडी कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे बताओ, तब तक मैं जाके ऊपर रेकी कर लेता हूँ, सामान जो सारे बंकर्स चेक कर लेता हूँ. आई वेंट अप देयर, देखा पोजीशन, गन पोजीशन चेक कर ली. तभी रेडियो मैसेज आया कि हम सब आ गए हैं यहाँ पर. आई टोल्ड हिम ओके ठीक है, मैं आपको नीचे लेने अभी आता हूँ. और क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया था, मुझे रास्ता देखा हुआ था मैंने,
अंधेरा रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं लगभग 10 मीटर करीब नीचे पहुंचा ही था, तभी एक बहुत जोर से धमाका हुआ। चारों तरफ से फायर चल रहा था, मालूम नहीं चल रहा था फायर कहाँ से आ रहा है, बॉम्ब्स कहाँ से फूट रहे हैं। तभी एक जोर से धमाका हुआ और मैं जोर से गिरा। मुझे पता नहीं कि हुआ क्या। कुछ सेकंड्स के बाद, 15-20 सेकंड के, 30 सेकंड के बाद में अचानक मुझे पैर में बहुत दर्द हुआ और मैं गिरा हुआ था। जब पैर में दर्द हुआ तो नजर नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। जब दर्द हुआ तो मैंने अपने पैर को, बॉडी को देखा। पैर को जब नीचे हाथ लगा के घुटने के नीचे देखा तो पैर के चिथड़े उड़े हुए थे, पैर था नहीं, हड्डी लटकी पड़ी है, मांस पटा पड़ा है, और घुटने के नीचे आई वॉज नॉट हैविंग माई लेग। खून बहुत बह रहा था, बहुत ज्यादा दर्द, क्योंकि बारूद जो होता है एक्सप्लोजिव की, बहुत ज्यादा दर्द। और मैं जोर जोर से चीखने लगा, इतना भयंकर दर्द। क्योंकि अब से पहले भूख क्या होती है, भूख की लिमिट देखी थी, प्यास क्या होती है वो देखी थी, डर क्या होता है वो महसूस किया था, मगर दर्द क्या होता है वो उस दिन महसूस किया। दर्द हम कितना सह सकते हैं। मगर जैसे कि मैं बताया कि हम ट्रेन कमांडो हैं, विजय सर ट्रेन कमांडो हैं, हमको हर तरह की बुरी से बुरी कंडीशन सिखाई जाती है। मैंने अपने जो कुछ ड्रेसिंग, कुछ पट्टियां अपने बॉडी में साथ में कैरी करते हैं, फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग निकाली और अपने लटकते हुए मांस को, उसको जितना भी हड्डी लटक रही थी, जो कुछ था, फटे हुए पैर को टाइट बांध के, ताकि और ब्लीडिंग ना हो, उसको समेट के लपेट के पट्टी में उसको टाइट बांध के पैर, ताकि और नुकसान ना हो। मगर दर्द इतना था कि मैं जोर जोर से चीख रहा था। तो जब मैं चीख रहा था और तो चारों तरफ इतना असमंजस का क्योस मचा हुआ था, तो मेरे जवान जो ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे, तो ऐसे में उनको लगा कि शायद मुझे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है और वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, उससे मैं चीख रहा हूं। क्योंकि डिसीजन मेकिंग और ऐसे में जब चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है, महसूस होता नहीं है। तो मेरे साथियों ने जिस जगह मैं गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, लगभग 100 मीटर दूर पे, उन्होंने मेरी ही डायरेक्शन में मशीन गन लगाई और फायर करना शुरू कर दिया। टोटल क्योस, पता नहीं। और उन्होंने अपनी असेसमेंट ये की कि शायद प्लाटून कमांडर को पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है, वो टॉर्चर कर रहे हैं, हमें पाकिस्तानियों को मारना है, और मेरी डायरेक्शन में फायर करना शुरू कर दिया। जब थोड़ा बीच में गैप पड़ा तो मैं जोर से चिल्लाया कि ये मैं हूं, माइन में पैर उड़ गया है, स्टॉप फायरिंग। तब जाके उनको समझ में आया कि बात कुछ और है। और जब मैं गिरा तो मैंने आसपास देखा तो आई वॉज लाइंग डाउन इन अ माइन फील्ड। माइन फील्ड में मैं गिरा हुआ था। और किस्मत की बात है कि अगर मेरा हाथ कहीं दाएं बाएं और गिरता तो शायद मेरा हाथ उड़ जाता, अगर सर किसी और माइन पे पड़ता तो मेरा सर भी उड़ जाता। और आसपास वो थोड़ा बहुत वो चांदी की तरह माइन वो चमक रही थी, सफेद रंग की माइन थी, फेंक रखी थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि साथियों को कि ऊपर आओ और कम एंड हेल्प मी आउट। और जब ऊपर आ रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पे मत रखना, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, उनके ऊपर पैर रख के आना, क्योंकि यहाँ माइन फील्ड है। साथियों, आप समझ नहीं सकते हो कि किसी की कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या होगी जब उसे पता है कि मुझे ये आगे 100 मीटर क्रॉस करना है और मैं माइन फील्ड में से क्रॉस करना है। उसको ये मालूम चले कि अगला कदम रखते ही मैं उड़ जाऊंगा। इतना होने के बाद भी they came up as the directions given by me. उस कंडीशन के अंदर भी I was able to take balanced decision to give orders and directions to my troops, to my men, कि how they should reach me without keeping their foot on the ground. अपने पैर पत्थरों के ऊपर रखते हुए ऊपर आओ और अपनी मशीन गन्स की पोजीशंस इन बंकर्स पे 2-3 जगह यहां लगाओ, इससे पहले कि पाकिस्तानी अटैक दोबारा करें, हमें संभालना है। और तब
जब 2-3 साथी आ गए, पोजीशन लग गई, मेरे सूबेदार साहब ने पोजीशन ले ली, फिर ये बताया कि रेडियो सेट पे नीचे कमांडर को खबर दी कि हमने ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, हम आ गए हैं। और फिर ये बताया कि इस ऑपरेशन में माइन ब्लास्ट में मेरे पैर को चोट लगी है, तो घायल हो गया। इस कंडीशन में भी माय मिशन वाज मोर इंपॉर्टेंट देन माई सेल्फ, कि जिस काम के लिए ऊपर भेजा था कि पाकिस्तानी काउंटर अटैक आने से पहले अपनी इस पोजीशन को स्ट्रांग होल्ड बनाना है ताकि पाकिस्तानी दोबारा आके कब्जा ना कर ले। अपनी पोजीशन ली, अपने साथियों का देखा नुकसान, तो लकीली और किस्मत के साथ कि यदि कुछ नुकसान हुआ इस ऑपरेशन में तो सबसे आगे चलने वाला मैं था। नुकसान हुआ तो मुझे हुआ, लेकिन मेरे जो जवानों को जिनको मैं कमांड कर रहा था, ईच एंड एवरी वन वॉज सेफ, किसी को कोई खरोंच भी नहीं आने दी। 8 घंटे का टाइम लगा वहां से, रात को 11 साढ़े 11 बजे जब चोट लगी, 8 घंटे का टाइम लगा जब नीचे दराज में लेके आए गए। साथी मेरे, वो लोग आज भी, अगर मैं एक भी सांस लेता हूं, अगर आज में मैं जिंदा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दोज ब्रेव सोल्जर्स जो अपने कंधे पे अब उस हालात में मुझे वहां से एज ए कैजुअलिटी इवैक्यूएट करके लेके आए। 4 बंदे 6 बंदे जितने भी आ सकते थे साथ में, वो एक पैर पे हाथ लगा के और किस तरह कंधे पे हाथ रख के, स्ट्रेचर नहीं मिला था। और उस दर्द की कंडीशन में कई घंटों के बाद मुझे पहला पेन किलर इंजेक्शन मिला। 8 घंटे बाद मैं नीचे द्रास में हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो यही रिपोर्ट थी कि वी हैव ऑक्यूपाइड एंड वी हैव टेकन दैट पोजीशन 3 पिंपल्स, और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और जब नीचे पहुंचे, मेरे कमांडिंग ऑफिसर और मेरे एडजुटेंट, मेरे ऑफिसर्स मिले, तो उनसे मिलके पहली चीज यही कहा मैंने कि सर मैं बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा। मुझे तब एहसास हुआ कि पैर हमें चोट लगी है तो मैं बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा। एंड दे मोटिवेटेड मी, कोई बात नहीं भाई, हम बास्केटबॉल भी खेलेंगे और सारे काम करेंगे, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा सर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। डॉक्टर्स दे सेड कि खाना नहीं खा सकते, बिकॉज अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। वी कांट ईट दैट मच बिकॉज कई कई दिनों से, कई हफ्तों से वी वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नर्सिंग असिस्टेंट आए तो बोले कि साहब अपना जो मुंह उस तरफ कर लीजिए, मैं पैर की ड्रेसिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें पूरा पॉइजन गैंग्रीन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो तुम ड्रेसिंग करने के लिए जो पट्टी अभी उतारोगे, वो पट्टी मैंने खुद अपने हाथ से बांधी है, चिंता मत करो, तुमको जो करना है कर लो, डोंट वरी अबाउट मी, आई वुड लाइक टू सी कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजरी। तो उसने ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग करने के बाद में हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएशन के लिए आए, एंड देन ऑन 30th of June आई वॉज इवैक्यूएटेड। तो 7 मई 1999 जब कारगिल लड़ाई शुरू हुई थी, to 29th of June, almost 2 months, I've been witness to each and everything what is happening across the war. That is how I think Vijay sir, आप you could find this clip 50-day war जो बात है। तो दोस्तों, I have lived each and every moment of that 50-day war. So I feel so privileged, I feel so proud कि मैं अपने इस जीवन में ये वर्दी पहनी और अपने देश के लिए जिस मकसद से मैंने वर्दी पहनी थी उसको मैं सफल कर सका। That is the greatest level of satisfaction in my life so far. Goosebumps sir. तो all those listening जो भी सुन रहे, अगर आपको ऐसे लगा goosebumps है तो you can चलो type in the chat box कि goosebumps करके, you know, like मैं तो I am just in total बोलते हैं ना कि I'm just mesmerized sir. Hats off to your bravery. And जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि it's not easy to be a soldier, you know, it's not easy to be a soldier.
every way, in every way you have to prove yourself. And as all of you know कि जैसे कारगिल war हो या any other wars which has been fought, but Kargil war has got its own significance. Kargil was one of those wars जहाँ पे हम लोग के पास बिल्कुल एडवांटेज नहीं था, हम नीचे थे और they were on the top, and always as per the laws of physics, जो ऊपर होता है उसी के पास एडवांटेज होता है. And in all those things, you know, when वक्त आता है कि करना ही है, there is no other option. So thank you for that, sir, and Jai Hind, and thanks for your service, sir. So one last question here, sir. So how was life after that, sir? Ki suddenly, you know, like being able-bodied, and आज तो आप मैराथनर है सर, आप एवरेस्ट, सर हैज क्लाइम्ड द EBC एंड बहुत कुछ. सो अगर आपको ऐसे लगता है कि सर शांत बैठे हैं, इट्स नॉट. सर हैज बीन मोटिवेशन टू मेनी पीपल, बिकॉज आई एम अ डिस्टेंस रनर. आई नो सर थ्रू, पहले जब मैं सर का जब जिक्र हुआ तभी मैंने सर का एक फोटो देखा था इन द रनिंग अटायर वेयर ही हैज जस्ट रन विद द प्रोस्थेटिक्स, एंड दैट्स हाउ, दैट्स लाइफ. कि कभी भी एक सोल्जर है वो अपने आप को कभी ये नहीं मानता अरे चल मेरा पैर नहीं है तो यू नो सब कुछ खत्म हो गया, नथिंग लाइक. सो हाउ टफ और इजी वाज इट, सर? आई वोंट से इजी तो डेफिनेटली नहीं होगा सर, बट जो जिंदगी की जो तरीका है, जीने की तरीका, उसके बाद कैसे रहा सर, इन शॉर्ट इफ यू कैन टेल. ओके विजय, थैंक्स सो मच यार. ये तो बहुत जरूरी है कि लड़ना सिर्फ जब वर्दी में रहते हैं, फौज की सेवा करते हैं तभी नहीं. लड़ना एक हमारा एक तरीका होता है, द वे वी थिंक एंड द वे वी डू इट. तो जब चोट लगी तो एक जैसे एक छोटा बच्चा अपने होता है कि हम सेलिब्रेट करते हैं. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो पहला क्रॉलिंग करना शुरू करता है, क्रॉलिंग के बाद 1-2 कदम उठाना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, दौड़ना शुरू करता है. तो चोट लगने के बाद में ये it was a reliving of my life, of my childhood, because I was totally bedridden. I wanted to do a lot of things. तो पहली बार जब मैं बेड से उठ के अपने वार्ड में वॉशरूम पे गया व्हील चेयर पे, I was feeling so happy कि मैं बिस्तर से छोड़ के I am able to move. तो ये एक अजीब सा, एक बहुत सेटिस्फाइंग था कि मैं व्हील चेयर पे, नाउ आई एम मोबाइल, अब मैं बिस्तर पे रुका नहीं हूं. और जब व्हील चेयर से विद द हेल्प ऑफ द क्रचेस, जो हम बैसाखी बोलते हैं, बैसाखी के सहारे जब मैं चल पाया, जब तक पैर लगा नहीं था, एक ही पैर के सहारे जब मैं चल पाया बाथरूम तक अपने रूम में, that was another bigger milestone. तो I have relived that moment. और जब आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में जब मुझे प्रोस्थेटिक लेग मिल गया, then I was able to walk again on my both legs. I relived that moment once again. तो जैसे हम एक छोटे बच्चे को पहली बार उसने क्रॉल किया, कि पहली बार उसने खड़ा होकर सीखा, चलना सीखा, और चलने के बाद पहली बार वो दौड़ा, तो मैं 28 साल की उम्र में फिर से वो बचपन से आगे बढ़ा. कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था चलने के लिए कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज भाई एक एबल बॉडी होने के बाद में अचानक से आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है. लेकिन जब लाइफ बदलती है, हर बदलाव अच्छा होता है. देन आई केप्ट ऑन मूविंग, केप्ट ऑन डूइंग गुड थिंग्स इन लाइफ एंड थिंकिंग पॉजिटिवली. और सबसे बड़ा एक एडवांटेज या जो मोटिवेटिंग फैक्टर, enabling factor was the way the soldiers were taken and given the respect in the society after the Kargil war. कि देखिए, ये एक इंसिडेंट, जब मुझे पैर में चोट लगी, ये चोट कहीं यहाँ रोड एक्सीडेंट पे दिल्ली में या कहीं जा रहा हूँ तब भी लग सकती थी, या कहीं और किसी एक्सपीडिशन में जा रहा हूँ तब भी लग सकती थी. मगर losing this limb in the war, या जिस मकसद के लिए आपने वर्दी पहनी है, अपने मिशन के लिए और देश के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा अगर कुर्बान किया है, that itself gives you such a high. वो अपने आप में इतना बड़ा जज्बा है कि आपको अपने शरीर का एक छोटा सा जो हिस्सा चला गया, उसकी
कमी महसूस नहीं होती। और उसी तरह से जो हमारे समाज में हमारे दोस्त, हमारे साथी और जो भी इसके बारे में जानते हैं, उस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, तो इट्स ऑल मेंटल। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। So this actually helped me a lot in recovering as soon as possible. So mentally I became very strong. और जब मैं भागना दौड़ना शुरू किया, then I also started taking part in the Paralympic athletic tournaments and जब 2004-5 में जब रनिंग शुरू की, I joined ONGC. तो जब रनिंग शुरू की उसमें मुझे मजा आने लगा और I started throwing javelin. I was fortunate to be part of the Paralympic National Games. Bangalore में participate किया. I won a gold medal in the nationals in athletics 100-meter race and javelin throw. I got selected in the Indian team. I was fortunate to represent India in different countries. Start किया Belgium में गए the first time 2004 में I was able to win a gold medal in javelin throw. उसके बाद 2005 में I went to Manchester, UK in javelin throw and 100-meter race. I won a silver medal for the country. And thereafter these things they kept on moving up. So representing the country and winning gold medal there, और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाए और जनगण मन की धुन बजे, ये सब अचीवमेंट, ये सब जो मैं अचीव कर पाया एज ए पैरालंपिक एथलीट way back in 2004, 5, 6, 7 up to 10, ये एक अलग लेवल, एक अलग हाई है। हो सकता है कि यदि मुझे चोट ना लगी होती, यदि मैं आर्मी में ही होता, तो मुझे इस लाइफ का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो वो फाइटिंग स्पिरिट जो हमने सीखी थी, वो हम इसको आगे बढ़ाते हुए इन पैरालंपिक्स ऑल्सो आई केप्ट ऑन डूइंग इट। 2006 में जब मलेशिया में हम जब रन कर रहे थे, तो भागते हुए मेरा प्रोस्थेटिक लेग टूट गया तो वापस आए, आई कुड नॉट कंप्लीट द रेस। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अवॉइड कीजिए इतना हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपके घुटने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। मैं कुछ महीने इंतजार किया, मगर फिर अपने आप को तैयार किया एंड दिस टाइम आई पिक्ड अप बैडमिंटन। तो पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, हमारे जो साथी यहाँ एबल बॉडीड के साथ में खेलते हैं, तो इतने अच्छे से तैयारी की कि आई स्टार्ट प्लेइंग पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन खेलते हुए once again I was fortunate to be part of the winning the singles and doubles gold medal in para badminton. फिर से इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। I represented the country in different games, different countries, including Asian Games bronze medalist and also the IWAS World Games. World Games में टीम में we won a gold medal and in doubles में para badminton World Games 2009 वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल, सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल। सो एक ही साल में एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, पैरा बैडमिंटन, ओह दैट वाज अ ग्रेट हाई। 2010 में 9-10 में देन आई वाज फॉर्चुनेट टू बी रिसिपिएंट ऑफ द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बीइंग अ रोल मॉडल इन द सोसाइटी। और फिर 2010 में 2010 में इजराइल में हम खेलने गए, वहाँ सिंगल डबल्स में पैरा बैडमिंटन, तो ये मेडल्स वगैरह लिए। देन आई गॉट ट्रांसफर टू देहरादून। तो देहरादून से मसूरी, पहाड़ों में चलने में अच्छा लगता था, पहाड़ों में ट्रेकिंग शुरू की। तो 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रेकिंग स्टार्ट की एंड देन गॉट सेलेक्टेड बाय आवर टीम टू बी द पार्ट इनिशियली टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक हमने किया। वहां जाके इतना अच्छा लगा कि यस विल लेट टू कम बैक फॉर द माउंट एवरेस्ट मिशन। 1.5 साल की ट्रेनिंग की, एलिमिनेशन राउंड कई हुए। रनिंग 5 kilometers in 25 minutes was the qualifying time. Thereafter 20 kilometers race in mountains. तो वो, और मजे की बात ये कि जब मैं ये ONGC में पार्टिसिपेट कर रहा था, जब एलिमिनेशन राउंड, सिलेक्शन राउंड कहेंगे, तो मेरी उम्र में और मेरे जो साथी और कॉम्पिटिटर्स जो थे, वो 20 साल का एज डिफरेंस था, 20 years younger to me. And then I was qualifying for all the tests, और सब जगह I was physically doing good. It was just because कि I was trained so well. अच्छी ट्रेनिंग थी, कमांडो थे और फिटनेस मेंटेन कर रखी थी। And after
से एलिमिनेशन राउंड 6-7 एलिमिनेशन राउंड हुए, जिसमें एडवेंचर कोर्स, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, देन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन सतोपंथ गंगोत्री एरिया में नेपाल जाके। जब इतने सारे सिलेक्शन राउंड हुए तो आउट ऑफ इनिशियल जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था 300-350 जो यंगस्टर्स थे, उनमें से फाइनल सेलेक्ट होके वी 12 वर सेलेक्टेड एंड द माय कंपनी ONGC felt that okay, he could be the man who could be the expedition of the mission Mount Everest. So I was fortunate to be the expedition leader of the Mount Everest expedition of ONGC. So and we were the successful team on 28th and 27th and 28th night of 2017. We were on the top of the Mount Everest. I was not on the top. I climbed to camp 2 because as expedition leader I was mandated to be in the base camp, and without any casualties, each and every one of my climbing member came back after successfully summiting Mount Everest. That was the best thing which could happen in my life. वापिस आने के बाद अब मेरी ट्रांसफर देहरादून से दिल्ली हो गई। अब दिल्ली में तो कोई पहाड़ है नहीं चढ़ने के लिए, और बाकी कुछ नहीं बचा, तो दिल्ली में सड़कें हैं नापने के लिए। तो आई स्टार्टेड कीपिंग फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस, साइकिलिंग रेगुलरली 20-30 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाता है कभी, अभी इन दिनों थोड़ा ब्रेक है। देन रनिंग 5-10-15 किलोमीटर, 20-21 किलोमीटर। तो दिल्ली का एयरटेल हाफ मैराथन, बॉम्बे का टाटा मुंबई मैराथन, तो ऑल दीज मैराथन रेसेस आई हैव टेकन पार्ट एंड आई रियली एंजॉय कीपिंग माई सेल्फ फिजिकली फिट। मैं ये सोचता हूँ कि इस धरती पे एक ही जन्म मिला है, तो चाहे हंस लो, गा लो, कैसे भी कर लो। तो नाउ ऑन 27th of August आई विल बी ऑफ 51 years एज। 50 साल मेरे हो गए, हाफ सेंचुरी हो गई है, और अगले 150-200 साल और मुझे जीना है। तो उसके लिए मुझे अपने फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन करनी पड़ेगी। So that's how I have taken my life from being in the war, and then after say getting injured and coming back into the life. तो इस तरह से मैंने अपने आप को एंजॉय किया है। My goodness sir, what an inspiration। मतलब वो होते हैं ना सर, so all those all जो young लोग हैं जो सुन रहे हैं, and not necessarily like age doesn't matter। when I say young, all of us are young। जैसे सर ने बोला 51 years old young, and we aspire to achieve much more। such an inspiration। आप सबने सर की कहानी सुनी होगी, और रिप्रेजेंटिंग इंडिया एक स्पोर्ट्स में हो गया तो फिर देन एक्सप्लोर द अनदर स्पोर्ट्स। दैट इज व्हाट इज लाइफ, कि कहीं इसमें मैं मास्टर हो गया तो पिक अप द नेक्स्ट वन एंड व्हाट नॉट लाइक सर। आई विश एंड दिल में हमेशा हो रहेगा सर कि you should get the highest of the awards of India, maybe Padma Shri, Padma Bhushan. You deserve all that, sir, and we will wait for that day, and that day will come, definitely will come, sir. A national hero, this is how a national hero looks, ladies and gentlemen. Aap log dekh rahe ho, this is the national hero, like not that film star diya hai, hame koi maine nahi rakhta, and I don't care for that. This is how a national hero looks. So गौर से देखिए, and you all are privileged to hear him along with me. You all are privileged to hear sir for that 2 hours with minor technical glitch. And मेरा सौभाग्य होगा sir कि whenever I come to Delhi, I will definitely catch up with you. I was in Delhi few days back. Now I have got a purpose again to come to Delhi. तो पक्का sir आपसे मिलेंगे, and you have given me whole lot of motivation, sir, because I am a distance runner. I do run. I represented. I was part of Indian contingent for the ultra marathon comrades. And जब भी life में low हो जाऊंगा sir, तो I will go back to this interview, because this will always keep each one of us motivated. जो defense aspirant है, for them also, and for anyone जो भी ये YouTube पे देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, this is an inspiration. मैंने इतने सारे interviews किए life में. I've been part of various talk shows. I've been hosting many things, but
दिस इज, मैं बोलूंगा ना, आज का दिन जो होता है ना 19 जून सुनहरे अक्षरों में मेरे करियर में, या मेरे जो क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट में, दिस वुड बी वन ग्रेट डे सर, कि आपसे बात हुई। एंड व्हाट इंस्पिरेशन सर। नहीं तो काफी लोग कैसे ना सर, सिविल में या एक कुछ हो गया, चोट लग गया और डिप्रेस होके बैठ जाएंगे, फिर सबको बोलेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ करके, यू नो, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला गया लाइफ से, तो आई एम डिप्रेस, आई डिजर्व टू डाई, ये नहीं हुआ, वो जाके ये कर दिए, वो कर दिए। दिस इज हाउ लाइफ हैज टू बी लिव। जिंदगी एक बार मिलती है, वो कैसे भी मिले, रोड़े आएंगे लाइफ में, लॉट ऑफ रेजिस्टेंस विल कम, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विल कम। लाइफ हमेशा सेम नहीं रहेगा। बट जैसे सर ने बोला ना, जैसे फौजी बोलते हैं ना कि आपके ऊपर अगर कोई नींबू फेंक के मारे तो नींबू पकड़ो, वोडका में डालो और उसे पी जाओ। तो दैट इज हाउ लाइफ इज, यू नो, दैट इज हाउ लाइफ इज। होगा। तो एनी लाइटर मोमेंट्स यू वांट टू शेयर कि उस कारगिल हाइट्स में, उस वॉर सिनेरियो में कोई लाइटर मोमेंट की आप लोग बात कर रहे हैं, या पाकिस्तानियों से कोई इंटरेक्शन हो गया? देयर आर कपल ऑफ इंसिडेंट्स, लेकिन एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताऊंगा कि जब कारगिल लड़ाई चल रही थी तो उस समय देश के अलग अलग जगह पे जहां कहीं भी लोग शहीद हो रहे थे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो पॉलिटिकल पार्टीज या एडमिनिस्ट्रेशन, दे स्टार्टेड अनाउंसिंग पैकेजेस कि यहाँ शहीद हुआ तो यहाँ के 5 लाख या 10 लाख का, या हम यहाँ घर देंगे या नौकरी देंगे, जो आप नॉर्मली सुनते हो। ऐसे कभी रेडियो पे ऐसे जानकारी हमको मिलती थी। तो मेरे साथ में जो मेरे कमांडोज थे, तो एक उत्तर प्रदेश का साथी था, बिजनौर के रहने वाले थे शायद वो, या मुजफ्फरनगर के। तो वहां मालूम चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जो शहीद हो गए आज 22 साल पहले की बात, तो शहीद यदि होता है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मतलब कंपनसेशन या उस तरह से ऑनरेरियम दिया जाएगा। और हम अब अटैक पे जाने ही वाले थे, तो इंतजार कर रहे थे कि कब लास्ट लाइट हो जाए, अंधेरा हो जाए। तो एक और साथी था, वो जाट, क्योंकि राम जो हरियाणा से, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो जाट ट्रुप साथ में था, कि साहब ये आज ये जो धर्मेंद्र है ना, मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने बोला भाई बात क्यों नहीं कर रहे तुम, बात तो करनी चाहिए आपस में। साहब ये नाराज हो रखा है। तो मैं कहा भाई नाराज किस बात की नाराजगी है, ऐसे क्यों? तो उसकी टांग खींचने के लिए एक दो मर्दों ने और कहा कि साहब ये तो नाराज हो रखा है हमसे। तो धर्मेंद्र बोला कि भाई मैं तुमको ऐसे क्या बात बोल दी? बोला सर ये बोल रहा है कि ऐसा है कि मैं तो तुमसे 10 लाख रुपए ज्यादा अमीर हूं और मैं तुमसे बात क्यों करूं? तो मैं इंस्टेंटली समझा नहीं। तो जो मेरा रेडियो ऑपरेटर बड़ी था, उसने बोला साहब वो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो वापस नहीं आया ना उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो अभी से बोल रहे हैं कि साहब ये इसको 10 लाख रुपए मिल गए हैं, तो ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है। तो इन दो टफ कंडीशंस ऑल्सो, कि मजाक इस तरह के भाई 10 लाख रुपए मिल गए, मर जाऊंगा तो ये, और उसके बाद 15 आधा घंटे बाद में वी आर गोइंग फॉर द मिशन। तो ऐसे हंसते खेलते टाइम पास हो जाता था। ठीक है, फाइन। सो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, एंड जय हिंद सर, सैल्यूट, नेवल सैल्यूट टू यू सर। जय हिंद, थैंक यू।